السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تب آ گئے کلاس میں؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر بغیر کسی تاخیر کے آپ کا کلاس ہم شروع کریں، جہاں سے آپ کو میں نے روکا تھا، جہاں سے آگے سے کا کلاس چلنا تھا۔ آئیے پھر آگے کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کو ایک نئی چیز ہم لے کر آئے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے، بڑی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ نئی چیز کیا کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو چھوڑا تھا کہ لفظ اور اس کے قسمیں، بات ہم نے لفظ تک لا کر چھوڑ دیا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ کہ اس سے پہلے جو حروف تہجی کا تھا اس کو میں نے پورے ڈیٹیل سے ہم نے ذکر کر دیا ہے، لیکن اب آئیے کہ اب ہم چلتے ہیں اس دنیا میں جس دنیا کی ضرورت ہے، قواعد کے یا اردو کے اس دنیا میں ہم چلتے ہیں جس دنیا میں ہمیں جانا چاہیے اور جس دنیا کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آئیے لفظ اور اس کی قسمیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو سمجھنا ہے کہ لفظ کیا ہے، لفظ کے معنی کیا ہے، لفظ کیا ہے اور لفظ کے معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ لفظ جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے الفاظ۔ بہت سارے حروف کے مجموعے کو الفاظ کہتے ہیں، اور حروف تہجی جو بھی ہے ان تمام کے مجموعے کو لفظ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لفظ کے تمام مجموعے کو الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آئیے لفظ کے معنی کیا ہے۔ لفظ کے معنی ہے پھینکنا، ایک۔ دوسری چیز کہ لفظ کے اور معنی کیا ہو سکتا ہے، تو لفظ کو ایک سیدھے الفاظ میں اس کو یاد رکھیے، لفظ کہتے ہیں کہ وہ بولی جو منہ سے نکلے، دھیان دیجیے گا، لفظ کہتے ہیں کہ وہ بولی جو منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، یعنی زبان سے نکلنے والی چیز جو بھی ہوگی وہ تمام کے تمام کیا ہوں گے، وہ لفظ ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک نئی چیز آ جاتی ہے، ایک چیز آ جاتی ہے، آپ کو ہم اسی جگہ بتا دیتے ہیں، آپ اس کو سمجھ لیجیے گا۔ ایک چیز آ جاتی ہے کہ زبان، اور ایک ہوتا ہے بولی۔ جب آ گئے ہیں تو اس کو بھی ہم سمجھ لیں، جب لفظ میں آ گئے تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ لفظ وہ بولی جو منہ سے نکلے، ٹھیک ہے؟ منہ سے نکلنے والا وہ تمام چیزیں کیا ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ ہوتے ہیں۔ آئیے تو ایک ہوتا ہے زبان اور ایک ہوتا ہے بولی، جو بولی منہ سے نکلا۔ تو زبان اور بولی میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ یا زبان بولی ایک ہی چیز ہے، یا جو زبان ہے وہی بولی ہے، یا جو بولی ہے وہی زبان ہے؟ اس کو سمجھ لینا ضروری ہے، اور ان دونوں کو الگ کر دینا ضروری ہے۔ یاد رکھیے دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ بولی اور زبان میں فرق یہی ہے کہ بولی کے لیے کوئی نیم اور قانون نہیں ہوتا ہے، بولی کے لیے کوئی نیم اور قانون نہیں ہوتا ہے، لیکن جبکہ زبان کے لیے کیا ہوتا ہے، بولی زبان کے لیے نیم اور قانون ہوتا ہے۔ بولی کے لیے کیا ہے کہ بولی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس کو ہم بول سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اس میں بہت طرح کے الفاظ ہم داخل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، لیکن جیسے ہم زبان کے اوپر آتے ہیں تو اس کے اندر اس کے نیم اور قاعدہ قانون کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ قاعدہ قانون سے مراد کیا ہے کہ کہاں پہ کون سی لفظ مذکر استعمال کیا جائے گا، کہاں پہ کون سا لفظ مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ بولنے کا جو طریقہ ہے، بولنے کا جو سلیقہ ہے، ان تمام طریقے اور سلیقے کا نام زبان ہوتا ہے۔ جبکہ بولی کے اندر یہ جو طریقہ نہ ہو، سلیقہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، نہ تو طریقہ ہوتا ہے نہ سلیقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے مادری زبان کے اندر ہم بولتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بولتے ہیں، اپنے گاؤں کے اندر جو بولتے ہیں وہ ایک بولی ہوتا ہے، لیکن گاؤں سے باہر جیسے ہم شہروں میں جاتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے گھر میں ہم بولتے ہیں
कुंची करो है, कहाँ जा है। तो देखिए ये एक किस्म का बोली है, लेकिन इसी को गांव से बाहर जब हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या बोल रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो, क्या करते हो। तो देखिए ये एक नियम और कानून से चल रहा है। तो जबान के लिए नियम और कानून का होना जरूरी है, उनके शर्त का होना जरूरी है, लेकिन बोली के लिए उसके कोई भी जो है ना उसके अंदर कोई नियम और कानून का शर्त नहीं है, कोई उसूल उसके अंदर जरूरी नहीं है, लेकिन जबान के अंदर उसूल का होना जरूरी है। अब आइए, अब आते हैं जवाब में कि लफ्ज के माना अभी हमने आपको बताया है कि लफ्ज के माना क्या है, फेंकना है। याद रखिएगा इसको, फेंकना। लफ्ज के माना क्या है, फेंकना। लफ्ज के माना आता है फेंकना, यानी कि वह बोली जो मुंह से निकले। याद रखिएगा, वह बोली जो मुंह से निकले, वह बोली जो मुंह से निकले वो क्या कहलाएगा, वो लफ्ज कहलाएगा। अब चलिए, लफ्ज हुरूफ के मजमूए को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। लफ्ज जो कहा जाता है वो लफ्ज कहते हैं, हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। जो हुरूफ तहजी जो भी हर्फ है उन तमाम के मजमूए को क्या कहेंगे, हम लफ्ज कहेंगे। जैसे अबजद, ये एक क्या है, लफ्ज है, ठीक है। किसी का नाम जैद है तो क्या ये एक जो है ना लफ्ज है, ठीक है। इसी तरीके से कलम क्या है, एक लफ्ज है, ठीक है। तो वो तमाम चीजें, कलम जो है इसमें काफ लाम मीम है, 3 हर्फ के मजमूए का नाम लफ्ज है। इसी तरीके से कुर्सी, काफ है, रे है, सीन है, ये है, इन 4 लफ्जों के मजमूए का नाम, इन 4 हर्फों के मजमूए का नाम क्या होता है, लफ्ज होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि लफ्ज जो है हरूफ के मजमूए को कहते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर ले सकते हैं, कलम, किताब, इसी तरीके से कॉपी, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब लफ्ज है। चूंकि हर्फ के मजमूए को लफ्ज कहते हैं तो काफ एक अलग हर्फ है, लाम है, मीम है, इसी तरीके से काफ है, ते है, अलिफ है, बे है, इन तमाम यानी कि ये 4 हर्फ से मिलकर बना है किताब, ये 3 हर्फ से मिलकर बना है क्या है, कलम। इसी तरीके से ये जो है 4 हर्फ से मिलकर बना है कॉपी। तो हर्फ के मजमूए का नाम क्या होता है, वो लफ्ज कहलाता है, ठीक है। अब चलिए आगे, आपको बिला तखीर के आगे का क्लास हम शुरू करते हैं। बीच में कोई बातचीत नहीं और बीच में कोई शोर शराबा नहीं। हाँ, आने वाले जो है वो आ रहे हैं, उनको बैठने दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और जो लोग जो है ना नए हैं उनको इससे जोड़ लीजिए ताकि उनका पिछला सबक भी जो है ना वो सुने, यूट्यूब चैनल पर ऊपर जो है ना ये सुने, ताकि जो है ना पिछला सबक भी उनको जो है ना शुरू से हासिल हो जाए और फिर दोहरा ले ताकि वो आसानी हो। देखिए, हर कलमा को लफ्ज कह सकते हैं। एक कायदा सवाल एक यहाँ पे ये भी आता है कि क्या हर कलमा को हम लफ्ज कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। दो चीज है, मान के चलिए 1 मिनट के लिए कि एक कलमा है, ठीक है, और एक लफ्ज है। अब ये दोनों को समझना है, दोनों को समझना क्या है कि हर कलमा को हम लफ्ज कह सकते हैं या नहीं। तो याद रखिएगा, हर कलमा को हम लफ्ज कह सकते हैं। हर कलमा को हम क्या कह सकते हैं, लफ्ज कह सकते हैं, लेकिन हर लफ्ज को हम कलमा नहीं कह सकते हैं। इसको याद रखने की जरूरत है कि हर कलमा को हम लफ्ज कह सकते हैं, लेकिन हर लफ्ज को कलमा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों का, इसलिए कि जो लफ्ज होगा वो कलमा जरूर होगा, लेकिन जो कलमा होगा वो लफ्ज हो जाए ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं। इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिन चीजों को जब कलमा की किस्म में आएंगे तो हम बताएंगे, समझे। चूंकि अभी तो जो है ना इसका चल रहा है, समझे कि नहीं। इंक गिर गया भाई, खत्म। चलिए, तो क्या है, हर कलमा को लफ्ज कह सकते हैं लेकिन हर लफ्ज को कलमा नहीं कह सकते हैं। चलिए अब इससे आगे का हम चलते हैं।
किताबें बर्बाद हो गई। चलिए आइए, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? आइए अब इसको ध्यान देते हैं। याद रखिएगा, लफ्ज की दो किस्में हैं, एकदम ध्यान दीजिए। लफ्ज की दो किस्में हैं। लफ्ज की दो किस्में क्या हैं? लफ्ज की दो किस्में हैं, एक है मौजू, याद रखेंगे हम, एक है मौजू, दूसरा है मुहम्मल, याद हम रखेंगे। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? तो लफ्ज की दो किस्में हैं, एक हो जाएगा मौजू और दूसरा होगा मुहम्मल। अब इन दोनों को समझना जरूरी है, इसलिए कि मौजू क्या है और मुहम्मल क्या है। याद रखिएगा, मौजू कहते हैं ऐसे लफ्ज को जो मानादार हो। मौजू कहते हैं ऐसे लफ्ज को कि जो मानादार हो, और मुहम्मल कहते हैं ऐसे लफ्ज को जो मानादार न हो। ठीक है, समझिएगा। मौजू या तो एक लफ्ज में इसको याद रखिए, मौजू मानादार लफ्ज को, और मुहम्मल जो मानादार लफ्ज ना हो, यानी गैर मानादार लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मौजू की तारीफ जो है मानादार लफ्ज, मानादार लफ्ज को मौजू, और गैर मानादार लफ्ज को मुहम्मल। मानादार लफ्ज को मौजू और गैर मानादार लफ्ज को मुहम्मल। देखिए, मौजू की मिसाल है जैसे में इसकी मिसाल आप ले लीजिए, मिसाल जैसे किताब, कलम, कापी, ये लफ्ज भी हुआ और ये मौजू हुआ, चूंकि ये मानादार है। किताब से किताब समझ में आ रही है, इसका एक माना है। ठीक है, इसी तरीके से कलम क्या है? कलम एक लफ्ज है, लेकिन ये मानादार लफ्ज है। इसी तरीके से कापी क्या है? एक लफ्ज है, ये मानादार लफ्ज है। इसी तरीके से मुहम्मल जो गैर मानादार लफ्ज है, इसकी मिसाल में आप ले लीजिए, इसकी मिसाल में ले लीजिए जैसे उताब, जैसे हम कहते हैं किताब उताब। ठीक है, इसको ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे हम मानादार में जैसे किताब कहते हैं, ठीक है, और इसी की अगर मुहम्मल हम बनाएंगे तो उताब हो जाएगा, उताब, उलम। ठीक है, जैसे कहते हैं कि कलम उलम पानी ऊनी, तो पानी क्या हो जाएगा? पानी मौजू हो जाएगा, ऊनी जो बोले हैं ये मुहम्मल हो जाएगा। तो चूंकि मुहम्मल से हमको बहस नहीं है, मुहम्मल को तो हम यहीं पे खत्म कर देंगे, यहां तक लाए और यहाँ के बाद से मुहम्मल नहीं लेके चलेंगे। अब जो भी चलेंगे वो मौजू को लेकर चलेंगे, और तमाम इस्म की बहस मौजू के अंदर आ जाएगी। इसलिए कहा गया है कि उर्दू कवायद के अंदर तीन बहस सबसे ज्यादा अहम है, और तमाम कवायद का इन्हिसार जो है वो इसी तीन बहस के ऊपर है। एक क्या है? इस्म, यानी इस्म की बहस। ठीक है, दूसरा है फेल की बहस। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा जो है वो है हर्फ की बहस। पूरे कवायद इसी तीन पर है, इसको याद रखिएगा आप। क्या है कि पूरे कवायद जो है इसी तीन पर है। शुरुआत है इस्म की बहस, फेल की बहस, हर्फ की बहस। ठीक है, तो अभी जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं इस्म की बहस। यहां से इस्म की बहस शुरू होगी। ठीक है, जब हम मौजू की किस्में जब बयान करेंगे, उसमें से सबसे पहला किस्म आएगा इस्म, तब आएगा फेल, तब आएगा हर्फ। ठीक है, उसी चीज से हम चलेंगे और उसी चीज से हमारी जो है ना पूरे कवायद की शुरुआत उसी से हो जाएगी। ठीक है, तो पूरे कवायद इसी तीन पर है, एक, दो, इसी तरीके से तीन, यानी कि पूरे कवायद जो है इसी तीन हिस्सों में है। कवायद जो है इसी तीन हिस्सों में है। इस तीन हिस्सों को
एक एक करके जानना जरूरी है, और इसी 3 हिस्सों का नाम ही पूरा ग्रामर है। इसलिए पूरे ग्रामर को लोग पोथी के पोथी जो पढ़ते हैं वह इसी 3 की बहस पढ़ते हैं। इसलिए कि इसम की बहस अगर सिर्फ पढ़ी जाए तो शायद इंसान तो जो है ना एक काफी उम्र गुजर जाएगा, लेकिन इसम की बहस शुरू खत्म नहीं होगी। इसलिए कि इसम की बहस इतनी है। इसी तरीके से फेल की बहस, इसी तरीके से हर्फ की बहस है। लेकिन लोग चूंकि इतना पढ़ते हैं कि जिससे इंसान की मालूमात अच्छी हो जाए, इतना पढ़ते हैं जिससे आदमी की मालूमात जो है ना जानकारी अच्छी हो जाए, जो उर्दू को सही ढंग से पढ़ सके, उर्दू को सही ढंग से लिख सके। इसी तरीके से अरबी ग्रामर जो होता है वो इसीलिए अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है ताकि अरबी की इबारत सही से वो पढ़ सके, उसके ऊपर एराब सही से लगा सके, जबर जेर पेश का सही वो इस्तेमाल कर सके। इसीलिए कवायद की बुनियाद डाली गई है, और कवायद ही इंसान को लिखने पढ़ने का तरीका सिखाता है, बाकी कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है। इसलिए कवायद जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं जान सकते हैं कि कौन लफ्ज के ऊपर जबर आएगा, कौन लफ्ज के नीचे जेर आएगा, कौन लफ्ज के ऊपर पेश आएगा। इसलिए जबर जेर पेश यानी एराब और हरकत को जानने के लिए कवायद का जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अब चलते हैं, पहले मौजू से हम शुरू करते हैं। यहाँ तक के बात तो आ गई, चलिए अब फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं। आपको हमने 2 चीजें बताई, लफ्ज की 2 किस्में हैं, मौजू और महमल। तो महमल को हमने छांट दिया कि महमल से हमको बहस नहीं है, अगर हमको बहस है तो मौजू से बहस है। और चूंकि अब मौजू से चलेंगे तो इसमें तमाम चीज आएगी, चूंकि इसम की बहस से मौजू है, इसलिए मौजू में जब हम चलेंगे तो मौजू के अंदर जो आएगा, ये मौजू को 3 हिस्सों में बांटा गया। बस यही 3 हिस्सा बताकर आपको हम जो है ना क्लास छुट्टी करेंगे, घबराने की जरूरत है। पहला है इसम, दूसरा है फेल, तीसरा है हर्फ। इसी 3 को हमको बारी बारी से पढ़ना है। मौजू समझ चुके हैं, मौजू मानादार लफ्ज होता है, और जो मानादार लफ्ज होगा उसकी 3 किस्में होंगी, जो है ना इस्म, फेल और हर्फ, ये मौजू की किस्में हैं। अब हम बताएंगे कि मौजू कलमा में आता है कि नहीं, मौजू कलमा की किस्म हो सकती है या नहीं। इसी हिसाब से आपका अगला सवाल क्लास चलेगा इंशाल्लाह कल। आज के लिए इतना ही, बस क्लास आपका खत्म। आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं उनसे हमारी दरखास्त है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि जो है ना इससे क्या हो, ये क्लास आगे तक पहुंचे और लोगों को जो है ना इसके बारे में मालूम हो, लोग इससे फायदा हासिल करें। बस व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़क़त वस्सलाम।